Okay, so can you see the screen? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will proceed further. So this is the specific heat of the moist air. So now you can see it here. H is equal to 1.005 plus 1.5005 T plus W into 2501 plus 1.88 T. So this expression you can use for calculating the enthalpy of the moist air. Okay. So basically now we have discussed about all the properties actually. So we have talked about uh, dry bulb temperature, we talked about wet bulb temperature, we talked about TD, specific humidity, mu, phi and H. Okay. So now I will tell you, corresponding to dry bulb temperature, the pressure is ES. Corresponding to wet bulb temperature, the pressure is PV dash. Corresponding to TD, the pressure is PV. So this is the partial pressure of water vapor, partial pressure of water vapor. This is for unsaturated air, unsaturated air, and this is for saturated air. Okay. Now one more thing I would like to tell you is, which I think I have not told you till now. See, we have discussed about the three temperatures. Okay, we discussed about the three temperatures, and these temperatures are T, T dash, and TD for unsaturated air. For unsaturated air, dry bulb temperature is greater than wet bulb temperature is greater than dew point temperature. Okay, that is the relation between them. If it is saturated air, then dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature is equal to dew point temperature. So all three temperatures are same. Actually, when I was discussing about the wet bulb temperature, I didn't tell you that these three temperature will be same actually. Now I would like to tell you one important thing is, that is actually, suppose this, I take the first diagram, TS diagram, and suppose this is the state of the air here at this particular point. So you know that this is unsaturated air, because the water vapor which is present, it is in the superheated state. This is superheated state. Okay, and this temperature is dry bulb temperature, and this temperature is TD. Now when we talk about the wet bulb temperature, we say that there is evaporation of the moisture from the surface of the wick, and this moisture goes into the bulb actually. So what happens, the air gets saturated. तो उस टाइम पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, जो प्रोसेस होता है कुछ इस तरह से होता है, ये जहाँ पे है, ओके, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर. ओके, तो इवेपोरेशन होता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वाटर वेपर का थोड़ा सा डाउन जाता है, और अल्टीमेटली जो वाटर वेपर का टेम्परेचर है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे,
और जो वाटर का टेम्परेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ये प्रोसेस जब अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उन दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये टी डैश है, ये टी डी है, और ये जो सबसे ऊपर टेम्परेचर है ये टी है। ओके, सो दीज आर द थ्री टेम्परेचर्स। सो बेसिकली ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर होगा जब एयर सैचुरेटेड हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेम्परेचर जो है सारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सैचुरेशन पे पहुंच गया। तो अब एयर की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ गई है। किसी का माइक कौन है, प्लीज बंद कर लो। एयर की कंडीशन अब यहाँ पे आ चुकी है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके तीनों प्रेशर जो हैं सेम हो गए यहाँ पे, जब सैचुरेटेड कंडीशन हो गई, तो इसलिए ये तीनों टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट see, I told you that corresponding to T the pressure is PS, corresponding to T dash the pressure is PV dash, and corresponding to TD the pressure is PV। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो स्लिंग साइक्रोमीटर है, फ्रॉम स्लिंग साइक्रोमीटर आई कैन मेजर द वैल्यूज ऑफ टी एंड टी डैश। ये दो वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर तो मेजर कर सकता हूँ, लेकिन टीडी को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, और ना ही मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो देयर आर सर्टेन एम्पेरिकल रिलेशंस विच वी कैन यूज। एम्पेरिकल रिलेशन, अब इसमें से एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके काफी सारे रिलेशंस हैं, जिसमें से मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ कर दो माइक। जो एम्पेरिकल रिलेशन है वो है EV इज इक्वल टू PV डैश माइनस 1.8 P इंटू T माइनस T डैश डिवाइडेड बाय 2700। ये वैल्यू है हमारे पास। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये P है दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू जो है 760 मिलीमीटर ना दी हो सकता है इसकी वैल्यू आपको 750 दी हो। तो जो भी वैल्यू दी होगी आपने वो लेनी है। ये किसका माइक ऑन है? हेलो, पुरुषोत्तम अपना माइक को म्यूट कर लो यार। Sir, even you can mute him if you can go to Google Meet, ना you can mute him. इट्स हैंग, पता नहीं है, हैंग हो गया है कुछ। मुझे देखने दो एक बार, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है ऐसा। पुरुषोत्तम कहाँ पे है, क्या रोल नंबर है? नहीं, आई थिंक आई कांट म्यूट हिम। नो इट्स ओके। सॉरी सर, हैंग हो गया था फोन, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ये एम्पेरिकल रिलेशन है, ये वाला एम्पेरिकल रिलेशन जो ये मैंने दिया हुआ है। तो पी वी इज इक्वल टू पी वी डैश माइनस 1.8 टाइम्स पी इंटू टी माइनस टी डैश डिवाइडेड बाई 2700। और इस इक्वेशन का नाम है
एफ-जॉन इक्वेशन, एफ-जॉन इक्वेशन। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जो है स्लिंग साइक्रोमीटर की हेल्प से टी तो पता है कि कितने डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, दिस इज आल्सो नोन टू मी, दिस इज आल्सो नोन टू मी। तो टी और टी डैश पता है। अगर मैं टी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल से देखना चाहूँ तो मुझे पीवी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, सो दिस इज आल्सो नोन टू मी। ओके, और पी जो है, ये वैल्यू जो है पी की, ये ऑटोमेटिकली हमें गिवन होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, या ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 760 भी हो सकती है, 750 भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमें पता है, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड में पीवी की वैल्यू है ये मुझे नहीं मालूम। ये पता है, ये प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, टी डैश पता है, लेकिन मेरे पास पी वी की वैल्यू, ये वैल्यू नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके, ये जो एम्पेरिकल रिलेशन है, मैं यहाँ से पीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास पीवी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू स्टीम टेबल्स एंड सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर, कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब मुझे सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाएगा, तो ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर है ये जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो इसका मतलब इस रिलेशन को यूज करके, इस एम्पेरिकल रिलेशन को यूज करके मैं टीडी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि टीडी को मेजर करने के लिए कोई भी थर्मामीटर नहीं बना। ओके, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हम प्रेशर ले रहे हैं, हमने जो ये प्रेशर की बात की यहाँ पे इस इक्वेशन में, दो प्रेशर हैं यहाँ पे, एक है पीवी डैश जो कि राइट हैंड साइड पे है और दूसरा है पी। अब अगर मैं इनकी वैल्यू मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम में लेता हूँ, सपोज मैं इनको मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम में ले रहा हूँ दोनों वैल्यूज को, तो जो मेरी लेफ्ट साइड पे पीवी की वैल्यू है वो इसी प्रेशर की यूनिट में आएगी, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम में ही आएगी। लेकिन अगर मैं ये वैल्यू पीवी की और पीवी डैश की और पी की अगर मैं लेता हूँ बार में, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे पीवी की आएगी बार में। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इसकी वैल्यू किलो पास्कल में, तो यहाँ पे पीवी की वैल्यू आएगी किलो पास्कल में। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन इन्होंने बनाई है इस इतनी कंसिस्टेंट है कि आप किसी भी यूनिट्स को यूज करोगे राइट हैंड साइड पे, प्रेशर की सेम यूनिट आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो टेम्परेचर्स हैं या तो उनको आपने डिग्री सेल्सियस में लेना है या आपने उनको केल्विन में लेना है, क्योंकि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल नियरली सिमिलर है इन द सेंस कि उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज या तो डिग्री सेल्सियस में ले लो या फिर इसको केल्विन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इस एम्पेरिकल रिलेशन को यूज करके मैं पीवी कैलकुलेट करूंगा, स्टीम टेबल से सैचुरेशन टेम्परेचर देखूंगा, ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर मुझे मिलेगा, ये सैचुरेशन टेम्परेचर, ये ड्राई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ओके, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अच्छा, इसमें जो सीपी अरोड़ा की बुक में है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हुए हैं जो कि इस क्वेश्चन मतलब जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो भी एडिशन आपके पास है इसमें एग्जांपल नंबर 14.3 है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन ऑल्सो लुक फॉर एग्जाम्पल 14.4। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप कर लेना, तो आपको जो थोड़ा सा जो इक्वेशंस हमने यूज की हैं, इक्वेशंस हमने डिराइव की हैं, उन सब का यूजेस पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। अच्छा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें तो बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हमने यूज करी हैं, डिफरेंट इक्वेशंस यूज करी कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखो, मान लो हमने एयर कंडीशनिंग की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या लोड कैलकुलेशन है, हमें किसी जगह के लिए, किसी रूम के लिए, किसी बड़े हॉल के लिए हमें देखना है कि वहाँ का लोड कितना है। तो अगर हम हर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरह से सारी इक्वेशंस को यूज करते रहेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को नॉर्मली यूज नहीं करते, इसकी जगह पर हम एक चार्ट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आई होप कि आप लोगों को, शायद आप लोगों ने
डिप्लोमा लेवल पे पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो अब ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे हम किस की प्रॉपर्टीज प्लॉट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉइस्ट एयर, जिसके अंदर दो चीजें हैं, वाटर वेपर और ड्राई एयर है, ये दो चीज। तो ये जो है इट्स नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट, इट्स नॉट प्योर, ओके, प्योर नहीं है। तो अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो प्योर सब्सटेंस के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। प्योर सब्सटेंस के लिए दो प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है किसी भी स्टेट को प्लॉट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एयर है और मैं एक पीवी डायग्राम पे उसकी स्टेट को शो करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे प्रेशर की वैल्यू वैल्यू मालूम है और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम है, तो आई कैन प्लॉट दिस पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन मॉइस्ट एयर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो उसके केस में हमें जो है तीन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। सो आई नीड थ्री प्रॉपर्टीज, ओके। what could be those three properties? One of the properties that we use is P atmospheric, ठीक है, या P। तो ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने यूज करना ही करना है, ओके। अब इसको यूज करके इसके अलावा हमें दो प्रॉपर्टीज और चाहिए किसी भी स्टेट को प्लॉट करने के लिए। तो अब इससे पहले कि अ, तो बेसिकली जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें दो तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। एक तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी ये वाली, जिसको मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। एक तो हो गया आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, आप कोई भी दो प्रॉपर्टी ले सकते हो, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, ये कॉम्बिनेशन ले लो। या आपने ले लिया टी ले लिया और फाई ले लिया। या हो सकता है कि आपका कहो कि टी डैश और डब्ल्यू ले लेते हैं। तो कुछ भी, मतलब कोई भी दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन ले सकते हो स्टेट को प्लॉट करने के लिए एयर की, ओके। अब मैं आपको एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट, स्केलेटन साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में बताता हूँ। स्केलेटन मीन्स जिसके ऊपर कुछ नहीं ज्यादा बनाया हुआ। देखिए अब अ, कुछ इस तरह से बनता है, ओके। ये जो है डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये साइड, यहाँ पे डब्ल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। और ये जो कर्व है इसको बोलते हैं सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन कर्व। सो इट इज सैचुरेशन कर्व। और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100%। तो ये हमारे पास आ, तीन लाइंस हैं जो हमने यहाँ पे शो की हुई हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे। अब देखते हैं कि बाकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये वर्टिकल लाइन क्या शो करेगी, ये शो करती है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो वर्टिकल लाइन मेरे को क्या शो कर रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। किसकी लाइन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ सपोज ये वाली, तो ये जो लाइन है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है। तो इस लाइन के अलोंग डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तीसरी लाइन कौन सी हो गई, तीसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये जो लाइन है इस तरह से कर्व, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक कलर की लाइंस, ये रिप्रेजेंट करती है फाई को। अब मैंने बताया कि यहाँ पे फाई की वैल्यू 100 है, तो हो सकता है यहाँ फाई की वैल्यू 70% हो, यहाँ पे फाई की वैल्यू 50% हो। तो मैंने अभी आपको तीन लाइंस बताई हैं, अब चौथी लाइन के बारे में बताता हूँ।
ये मैंने अब ये कलर चूज कर लिया है। अब ये जो लाइन है, जो मैंने अब ये प्लॉट कर रहा हूँ इस तरह से, ये इतनी टिल्ट तो नहीं होती, बट अब जैसे भी बनी है, ये जो है कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। टी डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लाइन है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। और इसकी वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू जो है हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, इस पॉइंट पे वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे सैचुरेशन कर्व के ऊपर। हो सकता है कि ये वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ पे हमने इसको रीड कर लेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर को। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टीज होगी, मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, पांचवी है जैसे हमने एंथैल्पी को पढ़ा हुआ था। अब एंथैल्पी को कैसे देखना है, ये जो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ की है, ये किसी दूसरे स्केल पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करती है, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे चार्ट दोबारा बना देता हूँ। ये देखो, अगर ये मेरा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, और ये लाइन है मेरी, तो ये लाइन यहाँ पे एक स्केल बना होता है, यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, जहाँ पे अगर मैं इस लाइन को टच करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एच इस लाइन के अलोंग, ये जो लाइन मैंने प्लॉट करी है ये वाली लाइन, इसके अलोंग एच की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस स्केल पे ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे एंथैल्पी वैल्यूज सारी रिप्रेजेंट की होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और किसी दूसरे स्केल पे यही लाइन, जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ करी है, मैंने आपको ये बताया है कि ये कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में मैंने शो की है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में बता दिया, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन के बारे में बता दिया, डब्ल्यू की लाइन बता दी, फाई की लाइन बता दी, और एक मैंने एंथैल्पी की लाइन के बारे में भी आपको बता दिया है। तो पांच प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दी। अब छठी प्रॉपर्टी क्या होती है, छठी प्रॉपर्टी है, लेट मी चूज द डार्क कलर है, डार्क ब्लू कलर। तो एक तो ये टिल्टेड लाइन थी, एक लाइन इस तरह से भी होती है वहां पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर इस तरह से। ये जो लाइंस हैं, ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस हैं। यूनिट क्या है इसकी, मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस हैं। तो मैंने अब आपको बता दिया कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस के बारे में भी। अब मेरे को ये बताओ कि अब मैंने एक प्रॉपर्टी और रही है, वो है टीडी। इस टीडी को कैसे कैलकुलेट करना है, और ये टीडी जो है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसको हम कैसे देखेंगे। अ, ये मैंने अब साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास जो एक ड्राइवर टेम्परेचर है, वो लेटस कंसीडर की 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये एयर की कंडीशन है, मॉइस्ट एयर की स्टेट है। ओके, मॉइस्ट एयर की स्टेट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैंने इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, लेकिन मुझे ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अ, एक जो है, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से पास होकर जा रही है। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये जो है 30 डिग्री का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसका मतलब है मेरा जो एयर की स्टेट है इस लाइन के ऊपर तो होगी ही होगी कहीं ना कहीं। दूसरा वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, द सेकेंड वैल्यू विच इज गिवन टू मी इज वेट बल्ब टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने यहाँ से देखा कि इस पॉइंट पे 25 है, और ये मैंने एक टिल्टेड लाइन देखी जो ऐसे कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जा रही है, तो इसका इंटरसेक्शन आया इस पॉइंट पे।
तो ये जो है एयर की स्टेट है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, ये 25 था, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही है एयर, स्टेट ऑफ एयर 1। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है जब हम एयर को कूल करते हैं, कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब उसमें से हम पानी को निकाल नहीं रहे हैं, मतलब उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखना है। और दूसरा जो है, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को भी कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब मैं जो है कांस्टेंट कैसे रखूंगा? अगर देखो, अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन के अलोंग जो है डब्ल्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जब तक कि एयर सैचुरेटेड नहीं हो जाती। और सैचुरेटेड कहाँ पे होगी? मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन जो है, ये सैचुरेशन कर्व है, सैचुरेशन कर्व। ओके, ये सैचुरेशन कर्व है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि एयर की स्टेट मैंने अभी लोकेट करी है, ये जो एयर की स्टेट मैंने लोकेट करी 1, इससे जो है लेफ्ट साइड पे जाऊंगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है सैचुरेशन कर्व को, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस एयर का। तो मैंने क्या किया, 1 से इस डायरेक्शन में गया और 2 पे आया, और ये जो 2 पे टेम्परेचर मुझे मिला, ये जो टेम्परेचर है ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और एक्चुअली में इस टेम्परेचर को अब मैं रीड कहाँ से करूंगा? इस टेम्परेचर को रीड करने के लिए आइदर आई कैन गो डाउनवर्ड हेयर, ओके, यहाँ पे जो ड्राइवर टेम्परेचर वाली स्केल है यहाँ से रीड कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि ये वैल्यू 18 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। यहाँ तो ये कर लिया। यहाँ दूसरा क्या है, यहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जा रही है अभी यहाँ पे, ये इस वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे 18 डिग्री ही लिखा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। ये क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन पॉइंट पे, एट सैचुरेशन, सैचुरेशन पे क्या कंडीशन होती है? सैचुरेशन पे टी जो होता है वो टी डैश के बराबर होता है, और वो जो होता है टी डी के बराबर होता है, मतलब तीनों टेम्परेचर जो है बराबर है। तो अगर मैं स्टेट 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सारे सेम हैं, ओके। बट इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये जो एयर की स्टेट है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 30, वेट बल्ब टेम्परेचर है 25, और इस स्टेट के लिए टीडी की वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है वो आई है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में? सर एक डाउट था। हम्म सर जो ये 0.1 स्टेट मॉइस्चर की हमने लोकेट की है, हम्म ये हमने दो एट्रीब्यूट से की है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। हम्म लेकिन मॉइस्चर तो कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो उसकी मतलब स्टेट डेफिनेशन के लिए तीन एट्रीब्यूट चाहिए। करेक्ट। मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक्चुअली में क्या होगा कि जो तीसरा एट्रीब्यूट है ना, वो तुम्हें बताया था कि वो प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमने बनाया है ना, ये जो मैंने अभी शो कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली क्या है, ये बनाया जाता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम के लिए, ठीक है। अगर प्रेशर वेरी करेगा तो ये चार्ट वैलिड नहीं रहेगा। बट ऐसा होता है कि अगर मैंने इसको 760 के लिए बनाया है और थोड़ा बहुत वेरी कर रहे हैं, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 हो गया या 762 हो गया, या सपोज डाउन चला गया 756 चला गया या 754 चला गया, तो ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो कुछ स्मॉल रेंज में 750 से लेकर से 765 के बीच में मैं इसको विदाउट एनी मतलब ज़्यादा एरर के यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो आई एम एज्यूमिंग कि मुझे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, जो कि पर्टिकुलरली 750 से 760 या 765 के बीच में है, ठीक है, ताकि मैं इस चार्ट को यूज कर सकूं। क्लियर है? अदरवाइज क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर वेरी कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज मान लो 720 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम हो गया, तो मैं इस चार्ट को यूज ही नहीं कर सकता,
उसके लिए मुझे कुछ करेक्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है? आई नीड टू गो फॉर सम करेक्शन फैक्टर्स। जो भी वैल्यू मैं इस चार्ट से कैलकुलेट करूंगा उसके साथ मैं कुछ प्रेशर का करेक्शन फैक्टर यूज करूंगा, करेक्शन फैक्टर यूज करूंगा। बट नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, ये तो खैर जो अभी आप लोगों का एग्जाम 3 होना है, क्लास टेस्ट 3 होना है, उसमें तो इस करेक्शन फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें सीधा सीधा आपने यही एज्यूम करना है कि जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग 760 के कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर का यूज जब हम पर्टिकुलरली ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं, सपोज करो हम शिमला चले गए, तो शिमला में क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा बिकॉज इट इज एट ए हाई लेवल, हाइट पे है। तो वहां पे ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज नहीं हो सकता, वहां पे दूसरा साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ करेक्शन फैक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन है तो बताओ। सर ये पूछना था कि जब हम स्लिंग साइक्रोमीटर से वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं हम्म तब मतलब जो विक होता है वो है तो एक्चुअली 100% RH पे वर्क करता है, मतलब उसके 100%। अराउंड तो 100% RH होगी। हाँ तो सर वो तो सैचुरेशन ही हो गया ना। करेक्ट, वो तो सैचुरेशन हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या आपको बताता हूँ मैं। देखो, ये जो है ना, अब मान लो ये है आपके पास एक वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, ये इसका बल्ब पोर्शन है, ये बल्ब पोर्शन है इसका। यहाँ पे मैंने विक लगा रखी है, कॉटन है जैसे। ठीक है, इसको मैंने पूरा 100% इसको वाटर से में डिप कर दिया, तो पूरा का पूरा वाटर है यहाँ पे। लेकिन इसके आसपास जो सराउंडिंग एयर है, यहाँ पे जो सराउंडिंग एयर है, अगर ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अगर ये अनसैचुरेटेड है, ओके, तो इस अनसैचुरेटेड में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है पीवी, और यहाँ पे विक पे जो पार्शियल प्रेशर है वो मैं मान रहा हूँ पीएस है। तो ये जो पीएस होगा ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीवी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन है। और आपको मालूम है कि डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या है? डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पे भी जो मॉइस्चर है ना, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब बेसिकली यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जो है वाटर की, मॉइस्चर की 100% है कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हो सकता है मॉइस्चर जो है सिर्फ 60% हो, या हो सकता है 30% हो। तो हाउ द मॉइस्चर विल फ्लो? द मॉइस्चर विल ऑटोमेटिकली इवेपोरेट एंड गेट एडिड टू द अनसैचुरेटेड एयर। तो जब हम इस थर्मामीटर को मूव करते हैं 3 से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, तो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग एयर है, थोड़ा सा जो उसके आसपास का पोर्शन है जिसमें हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये जो एयर है इट गेट्स सैचुरेटेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये सैचुरेटेड हो जाएगी। ओके, अब जब ये सैचुरेटेड हो गई, तो इसका, तो जो इसका, इसको जो हीट चाहिए थी, जो मॉइस्चर इवेपोरेट हुआ है यहाँ से एयर में आया है, एक तो हीट मिलेगी इसी वाटर से जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वाटर के क्योंकि हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, और सराउंडिंग एयर में ये मॉइस्चर आ रहा है, तो इसलिए इसका भी टेम्परेचर, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर भी डाउन चला जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब विक पे और सराउंडिंग सैचुरेटेड एयर में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर रिड्यूस होते होते धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो ये जो रिड्यूस टेम्परेचर है, इसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ओके, सर जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आता है तो जो विक है उसकी भी मतलब सैचुरेशन पॉइंट मतलब वो भी अनसैचुरेटेड हो जाता है, नहीं वो अनसैचुरेटेड तो क्यों वो होगा? मॉइस्चर लॉस नहीं करेगा नहीं, ना। एक्चुअली में क्या है, मॉइस्चर तो लॉस करेगा, बट हमारा जो वेट बल्ब थर्मामीटर है ना, जब हम इसको वेट बल्ब से मेजर कर रहे हैं, तो इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो इसका विक है ना, यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। इट इज ऑलवेज डिप्ड इन वाटर एक्चुअली में। ठीक है, तो मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो वहां पे जो वाटर है वो एक्चुअली में उसका टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, क्योंकि उससे हीट ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको तो बेसिकली ये कंडीशन है। अगर आप इसको रोटेट नहीं भी करोगे ना, और थोड़ी देर के लिए अगर आपने एक थर्मामीटर ले लिया, मान लो ये एक थर्मामीटर लिया और यहाँ पे इसका बल्ब पोर्शन है,
और यहाँ पे आपने वाटर इसको वाटर में डिप कर दिया और इसको आपने सपोज करो कि 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो क्योंकि सराउंडिंग एयर जो थी अनसैचुरेटेड थी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन के लिए हीट जो है सराउंडिंग एयर और वाटर से आनी है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो होगा थर्मामीटर का, मान लो स्टार्टिंग में अगर ये टेम्परेचर ड्राई बल्ब शो कर रहा है, मान लो 35 शो कर रहा है, तो जब ये हीट लूज करेगा तो थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। हो सकता है कि वो वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इस कंडीशन पे। तो सराउंडिंग एयर भी सैचुरेटेड हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जो विक है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ठीक है। ये कंडीशन होती है इसके लिए, वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नहीं है। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा क्लियर है? क्योंकि अगर अभी क्लियर है तो फिर मैं आगे थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, अभी 20 मिनट पड़े हैं। आपने क्या करना है, आप सभी के पास आई होप कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स या टेबल्स हैं क्या? जो भी बुक ले रखी है उसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट जरूर होगा। अगर आपके पास सीपी अरोड़ा की बुक है, तो सीपी अरोड़ा की बुक में जो है लास्ट पेज पे, आई थिंक लास्ट तो नहीं, यस आई थिंक लास्ट पेज पे ही, नहीं नहीं लास्ट पेज पे नहीं है, आई विल टेल यू कहाँ पे है। यस, इट इज अपेंडिक्स C7। C7 पे जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। C7 अपेंडिक्स में साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट की 5-7 कॉपीज को आप मतलब 5-7 जीरोक्स ले लो, और उसके बाद उससे कैलकुलेशन करके देखो। अब मैं थोड़ा सा आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में और दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ये हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। अब देखो, अगर मेरे को कोई भी दो प्रॉपर्टी दे रखी है, सपोज करो कि मुझे दिया हुआ है से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 0.025 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर, ये वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। और सपोज करो कि दूसरी वैल्यू मुझे दी है 5, आई से दैट द वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 60%। 5 क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये वैल्यू दे रखी है, और बाकी जो प्रेशर है वो तो मैंने आपको बोला ही है कि ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट मैं बना रहा हूँ वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम के लिए बना रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गई डब्ल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और आर एच जो है वो 60% है। यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आती है ये है 100%, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ले ली जो कि 60% की है, ये मेरे पास लाइन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 60% की। तो ये 5 इज इक्वल टू 60% है। और यहाँ पे मैंने वैल्यूज देखना शुरू किया, तो मुझे यहाँ पे कहीं, यहाँ पे W की वैल्यू सपोज 0.001 है, और सपोज यहाँ पे है 0.025। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, तो मेरे पास जहाँ पे भी इंटरसेक्शन आया, दिस इज द कंडीशन ऑफ द एयर। अब मुझे क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है कि ये जो दो पैरामीटर दे रखे हैं, इसके बेसिस पे, इन दो पैरामीटर के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट करो, आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट करो, वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट करो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करो, देन यू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर। ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं इस पॉइंट को लोकेट कर लिया तो बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, अगर मैं यहाँ से सपोज यूँ वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको मैं पॉइंट को 1 कहता हूँ,
तो ये मेरे पास T1 मिल जाएगा। T1 क्या है? एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। मैं यहाँ से रीड कर लूंगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट से, तो मुझे मिल गया। इसके बाद मेरे पास जो है, अगर दूसरा टी डैश कैलकुलेट करना है, तो ये लाइन है जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, जो यहाँ से जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो वैल्यू है, दिस इज T1 डैश, और यहाँ पे लिखी होगी। तो अगर यहाँ पे T1 की वैल्यू मैं एक एज्यूम करता हूँ कि मान लो ये मेरे पास 35 डिग्री सेल्सियस आई है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर उससे कम होगा, क्योंकि एयर सैचुरेटेड नहीं है। एयर सैचुरेटेड नहीं है, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हो सकता है 28 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, ये 28 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब कहते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करो। तो ड्यू पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट से यू लेफ्ट मूव किए, यहाँ पे सैचुरेशन कर्व पे इंटरसेक्ट कर गया, ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, TD। तो इसको TD1 कहूंगा, क्योंकि ये जो कंडीशन 1 है एयर की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो इसको मैं कहाँ से रीड कर सकता हूँ? या तो मैं इसको यहाँ से रीड कर लूँ। ओके, तो ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? हो सकता है ये वैल्यू 22 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो ये TD की वैल्यू होगी, TD1। ठीक है, ड्यू पॉइंट आ गया। अब कहते हैं कि एंथैल्पी कैलकुलेट कर लो। तो एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करनी है? एंथैल्पी का यहाँ पे मेरे पास अ, ये एक स्केल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये एंथैल्पी का स्केल है, और मैंने इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे एच की कुछ वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू एच की लो होती है, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 30 है, और इस पॉइंट पे जाके सपोज 41.2 है। तो मैंने यहाँ से एंथैल्पी को रीड कर लिया, तो एंथैल्पी भी आ गई। अब छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैंने कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन कैसी है? स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस ऐसे जा रही हैं। एक लाइन यहाँ पे जा रही है, ये दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये है 0.9। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। अब ये जो दो लाइंस हैं, अब 0.1 तो इसमें से किसी भी लाइन पे नहीं आ रहा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एक प्रोसीजर है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो कि इस पॉइंट से होकर पास करेगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे, और ये पॉइंट इसकी लेंथ में मेजर कर लूंगा। ये पूरी लेंथ में मैंने मेजर कर ली। सपोज ये आ गई मेरे पास x, और यहाँ से जो लेंथ है इस पॉइंट तक वो है y। ठीक है, तो पॉइंट जो 1 है वहां तक लेंथ है लेफ्ट वाली लाइन से y, और टोटल जो डिस्टेंस है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है x। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.1 पे? इसका मतलब वैल्यू तो 0.85 और 9 के बीच में है, तो 0.85 तो है ही मेरे पास, प्लस कुछ एडिशन होगा उस वॉल्यूम में, मतलब 0.87 हो सकता है, 0.88 हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले तो दोनों का डिफरेंस लिया, मतलब 0.9 माइनस 0.85, और डिवाइडेड बाय जो टोटल लेंथ है, जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, x। और मुझे कितने डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना है? ये वैल्यू y के लिए कैलकुलेट करनी है। तो बस ये यहाँ से जो है मेरे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। इट इज नोन एज लीनियर इंटरपोलेशन, और कुछ नहीं है खास, इट इज लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? आई होप इट्स क्लियर एक्चुअली, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। एक थोड़ा सा और बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद जो है एक नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, अच्छा एक एक चीज अभी भी रह गई है। एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब
डिप्रेशन। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी माइनस टी डैश से। सो टी माइनस टी डैश, अगर तो एयर सैचुरेटेड है तो उसके लिए वेट बल्ब डिप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? वेट बल्ब डिप्रेशन क्या वैल्यू होगी सैचुरेटेड एयर के लिए, बताओ? 0 सर। जीरो। जीरो जीरो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सैचुरेटेड एयर पे तीनों टेम्परेचर बराबर होते हैं, और अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन 0 इफ इट इज अनसैचुरेटेड एयर। ओके, तो ये जो है, और जितना ज्यादा वेट बल्ब डिप्रेशन है, देखो आपके पास क्या हो सकता है कि एक कंडीशन है कि टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0, तो एयर सैचुरेटेड है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये टेम्परेचर जो हो 35 हो, और ये दूसरा टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस हो। तो इसका मतलब एयर में मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत कम है। कैसे कम है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमने एक चार्ट लिया, साइक्रोमेट्रिक चार्ट लिया अगर मैंने, तो अगर 35 जो है पॉइंट यहाँ पे है, ये मैंने 35 प्लॉट कर लिया। सपोज ये 35 की लाइन है, सर्कल नहीं लगाना चाहिए था, ये लाइन है 35 की। अब मैं बात कर रहा हूँ 15 की, तो 15 जो होगा काफी यहाँ पे होगा ना। यहाँ सपोज करो कि ये 15 है, तो मेरी जो एयर की स्टेट है वो यहाँ पे आ गई। तो अब देखो यहाँ पे मॉइस्चर कितना है, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी काफी कम है, इट इज वेरी लो। ठीक है, ये काफी लो है। और अगर यही अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाता जाता हूँ, सपोज आई ब्रिंग इट हेयर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, और मैं यहाँ पे भी थोड़ा और ऊपर चलता जाऊँ, जितना मैं ऊपर चलता जाऊँगा और जितना अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊँगा, यू विल सी that this value will keep on increasing, and a time will come when if it is intersecting what is happening at that particular point। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेट बल्ब डिप्रेशन जो है बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहाँ पे रिलेटिव, एक तो डब्ल्यू भी बहुत ज्यादा हो गया, डब्ल्यू इज वेरी हाई, और दूसरा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 100% हो गई। सो एट फॉर द सैचुरेटेड एयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ठीक है, ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा कि क्या प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आपको प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक का नाम है साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। क्या है साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस? अब साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? अभी तक तो हमने प्रॉपर्टीज की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसेस की। सबसे पहला प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग, दूसरा प्रोसेस है सेंसिबल कूलिंग, तीसरा प्रोसेस है ह्यूमिडिफिकेशन, चौथा प्रोसेस है डीह्यूमिडिफिकेशन, पांचवा प्रोसेस है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, छठा प्रोसेस है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, सातवां प्रोसेस है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, आठवां प्रोसेस है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये 8 प्रोसेस हैं। एक नवा प्रोसेस और होता है मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स। Mixing of two air streams, so it is basically adiabatic mixing of two air streams। ओके, ये
नो प्रोसेस है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, अगली क्लास में दोबारा इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये मेरे पास अगर एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, और ये मेरी इनिशियल कंडीशन है एयर की। आई से दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द एयर। ओके, इफ आई एम हीटिंग द एयर, हीटिंग द एयर मतलब, एक मिनट, ओके ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ से मैंने एयर को यहाँ पे ले गया, मतलब ये पॉइंट था सपोज करो 1, और यहाँ से 1 से मैं गया 1 से 2A। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर को, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और इस केस में जो W की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो ये सेंसिबल हीटिंग है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूँ, 1 से सपोज करो मैं हॉरिजॉन्टली मूव करा, और सैचुरेशन से पहले पहले कोई भी पॉइंट ले लिया 1 से 2B, इसको कहते हैं सेंसिबल कूलिंग। अगर मैं ह्यूमिडिटी को बढ़ाता हूँ, इफ आई इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, इफ आई गो वर्टिकली अपवर्ड्स अप टू पॉइंट 1 to 2C, सो इस केस में क्या है, W जो है इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हूँ, और इस प्रोसेस में देख लो आप कि जो टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 और 2C पे वो कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। T1 इज इक्वल टू T2C, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज सेम। इफ आई गो डाउनवर्ड्स, ओके, लाइक दिस, अप टू से किसी भी पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, तो अगर ये पॉइंट है मेरा फाइनल और ये 2D है, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि इसमें मॉइस्चर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। देखो पहले यहाँ पे मॉइस्चर था, इनिशियल पॉइंट पे मॉइस्चर कितना है, इनिशियल पॉइंट पे मॉइस्चर है W1, यहाँ पे कितना हो गया W2D। और मैंने आपको बताया कि जब हम डाउन जाते हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या रिड्यूस हो रहा है, वेपर रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो वाटर वेपर रिड्यूस हो रहा है, तो वाटर वेपर रिड्यूस होने का मतलब ड्यूमिडिफाई हो रहा है। ओके, अगर यही प्रोसेस, बाकी के 4 प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। अगर मान लो मैं यहाँ पॉइंट नंबर 1 से ऐसे जाता हूँ, से ये गया, मैंने कहा ये 2E तक गया। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या हुआ बताओ, 1 के कंपैरिजन में 2E पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये हीटिंग तो हो रहा है। और मॉइस्चर को क्या हो रहा है, मॉइस्चर जो है यहाँ पे अब हो गया W2E, पहले कितना था, पहले था W1, ठीक है ना, पहले W1 था। तो ये जो प्रोसेस हुआ 1 से 2E, ये हुआ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, अगर ये प्रोसेस ऐसे होता, यहाँ से हम यूं आते, ठीक है, अगर मैं इसको कहता 2F है, सो 1 से 2F का जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग थोड़ी हो गई, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, Humidification। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, गुड। अगर मैं यहाँ पे गया, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, सपोज करो इस डायरेक्शन में चला गया, सपोज ये जो पॉइंट है मैंने कहा 2G है, 1 से 2G चला गया। अब बताओ क्या हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले पॉइंट के कंपैरिजन में डाउन चला गया, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। सर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो गया क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। और अगर मैं यहाँ से यूं चला जाता हूँ, इस तरह से एयर की कंडीशन ऐसे हो गई कि 1 से 2GH, ओके 2H तक चला गया, तो इसका मतलब 1 से 2H जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो बेसिकली यही सारे प्रोसेस हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अच्छा मेरे को एक अब आप लोग ही बताओगे कि मुझे हीटिंग कब चाहिए होती है। आपने बहुत सा थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो हीटिंग कब चाहिए होगी, सेंसिबल हीटिंग।
नॉर्मली विंटर्स में होता है, इसको विंटर्स में हम सेंसिबल हीटिंग तो नहीं करते, हम चाहते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। ह्यूमिडिफिकेशन और हीटिंग करते हैं, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। कौन सा प्रोसेस होगा इसमें विंटर्स के लिए? नाम बताओ प्रोसेस का। 2E। 1 से 2E। तो यस 1 सर। से 2E जो है ये विंटर में प्रोसेस चाहिए, क्योंकि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का चाहिए। सर्दियों में हमें जो है टेम्परेचर बढ़ाना है, और आपको पता है कि काफी ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे भी, तो क्योंकि बाहर जो है सराउंडिंग एयर में मॉइस्चर ही नहीं होता, तो हमें मॉइस्चर ऐड करना पड़ता है। तो इट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन विच वी रिक्वायर। ओके। समर्स में कौन सा प्रोसेस चाहिए होता है? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग बेसिकली। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अच्छा, नहीं, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन समर्स की बात कर रहा हूं मैं। कूलिंग कूलिंग। नहीं, कूलिंग में नहीं चाहिए होगा, समर्स में हमें चाहिए होता है। आप क्या यूज करते हो बिल्कुल पीक समर में? मई का महीना है, जून का महीना है, क्या करते हो? घर पे क्या लगाते हो? एसी चलाते हो या डेजर्ट कूलर चलाते हो? इफेक्टिवली देखा जाए तो डेजर्ट कूलर चलना चाहिए समर मंथ्स में, मई के महीने में। 45 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। वाटर कूलर इज वेरी इफेक्टिव। और उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, हम एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, और जब वो सर मॉइस्चर ऐड होता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन 1 से कौन सा प्रोसेस है? सर सर 2G। 1 to 2G। 1 to 2G। 1 से 2G की तरफ जाएंगे, तो ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है। अच्छा, जब रेनी सीजन आ जाता है ना, तो बाहर बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, आपने देखा होगा। 100% ह्यूमिडिटी है। आप जैसे ही बाहर निकलते हो रेनी सीजन के बाहर, तो क्या होता है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो घर आओगे तो क्या करोगे? आपको चाहिए कि एकदम आपको कूलिंग भी मिले, क्योंकि हुमस टाइप हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ह्यूमिडिटी कौन रिड्यूस करता है? एयर कंडीशनर रिड्यूस करता है ना। एसी चलाओगे तो कौन सा प्रोसेस होगा ह्यूमिडिटी रिड्यूस करने के लिए और कूलिंग करने के लिए? ह्यूमिडिफिकेशन। 1 to 2H। 1 to 2H। तो हमने जो है डीह्यूमिडिफिकेशन करा और साथ में कूलिंग करा। तो जो हमारा रेनी सीजन है उसमें एसी इफेक्टिव होता है। अगर आप डेजर्ट कूलर को चलाओगे रेनी सीजन में तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, कूलिंग भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कूलिंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिफाइड एयर है बाहर, तो मॉइस्चर इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो कूलिंग भी नहीं होगी। ओके। अच्छा, ये बताओ, ये 1 to 2F जो प्रोसेस है, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कैसे होगा, कब करेंगे? सर जहाँ लाइक स्नो वगैरह गिरती है उस टाइम, स्लीट वगैरह जहाँ गिरती है। मतलब आप ये मान के चलो कि ऐसा विंटर में मौसम, रेन। हाँ, जहाँ पे अगर सर विंटर हो रही है, सर विंटर में बारिश हो जाए। विंटर में बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, और टेम्परेचर काफी लो है, तो वहाँ पे हम वी वुड लाइक टू गो फॉर हीटिंग एंड ह्यूमिडी हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई थी, खुद जो है सारा लेक्चर लिखा है। ठीक है। और एक एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स है, 9th प्रोसेस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। अब आप लोगों ने रेडी रहना है, किसी भी दिन आपका जो है सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। आपको मैंने डेट्स बता दी हैं क्या क्या है, आपको मैसेज कर दिया था ग्रुप आपके क्लासरूम पे। ठीक है, वो ईमेल मिल गया होगा आपको। ओके। तो आई होप कि द लेक्चर इज क्लियर, वेट फॉर सम टाइम। मैं अटेंडेंस ले लूँ एक बार। आई थिंक अच्छा, ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि अगर जैम बोर्ड पे लेता तो आपके पास पहुंच जाता, ये नहीं पहुंचेगा। ओके। अच्छा, किसी ने अभी मैसेज करा है कि सर इसके
नोट्स भेज देना। अनिल अनिल ने बोला है, देखो बेटे ऐसा है कि ये जो मैंने अभी आपको लेक्चर लिया है ना, ये मैंने कोई किसी बुक को सामने से खोल के नहीं देखा। सीपी अरोड़ा की बुक वैसे मेरे पास पड़ी हुई है मेरे सामने। उसमें से जो आपका एक तो एंथैल्पी वाली इक्वेशन थी उसको मैंने देखा था, और दूसरा जो एम्पेरिकल रिलेशन था, पी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू पी वी डैश माइनस 1.8 पी इंटू टी माइनस टी डैश अपॉन 2700, वो इक्वेशन देखी थी। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। बाकी सॉफ्ट कॉपी की बात करें, सॉफ्ट कॉपी भी मेरे पास नहीं है इसकी मेरे, क्योंकि मैंने पीपीटी जितनी आपकी अभी तक बनाई हुई थी ना, वो मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को मतलब पढ़ाया है उसके थ्रू। अगर मेरे पास आज पीपीटी होती तो मैं आपको पीपीटी से ही पढ़ाता, मेरे पास पीपीटी नहीं थी इसकी, तो मैंने इसलिए इसको लिख के पढ़ाया है आप लोगों को। तो ये मेरे बेसिकली मेरे दिमाग में है। मैं ऐसा करूंगा, जो भी इसका वीडियो बन के आएगा मेरे पास उसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ऐसा सच मेरे पास और कोई नोट्स, मैं हाँ ये देखता हूँ कि मैं अगर इसके ये जो नोट्स है ना, आई डोंट नो कि इसको शेयर कैसे करूंगा मैं। Sir, you can print that OneNote as a PDF and then you can share. देखना पड़ेगा वो पीडीएफ कैसे होगा, मुझे भी मालूम नहीं है, मैंने पहली बार कर रहा हूँ इसको। एक मिनट, जस्ट मिनट। चलो मैं ऐसा करूंगा, मैं देख लूंगा। आई थिंक कोई ना कोई मुझे बता देगा, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, देन आई विल। अच्छा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन तो है, रुको Yes, रुको। sir. Print का option है because I हाँ myself use OneNote sometimes, so it's easy. You can हाँ print as a PDF. Microsoft PDF printer एक है, already inbuilt होता है. हाँ हाँ, You वो can तो use मुझे that. मालूम है, दैट आई नो एक्चुअली, वो तो मैं यूज करता हूँ मैं। तो बस मैंने अटेंडेंस ले लिया, आप छोड़ सकते हो। मैं आपको 5 मिनट में भेज दूंगा नोट्स। ठीक है। Okay, sir. Thank you.